Okay. So, good morning, students. So far, we have discussed about patterns, type of pattern materials, pattern allowances, then mold material, properties of mold material, methods of making a sand mold, and last and previous lectures we have discussed about die casting, centrifugal casting, and continuous casting also. In today's lecture, we will be discussing about precision investment casting. So actually, it is a group of casting where there are two important processes. One is lost wax mold casting, another one is cell mold casting. These two casting processes are used to get very good surface finish from the casting produced. That means whatever casting which we are going to make by using these two processes, the surface finish will be very high. That's why it is considered as precision casting. And there is investment material. The name of the material is investment material, which is used for making mold. That's why it is known as investment. What is investment is there. So name of the process is precision investment casting. And in this group, there are two important processes, lost wax mold casting and cell mold casting. You can see the advantages, disadvantages, and applications of these two processes of precision investment casting processes. Important advantage is smooth surface finish and dimensional accuracy. तो बता सकता है what is the meaning of dimensional accuracy? Anyone? Yes, sir. Means that if diameter is 0.1, so it will be very perfect Yes, yes. in There this will be no casting. variation in the dimension of the casting produced. Whatever dimensions which we wanted to produce by using these two casting processes, we will get the same dimensions of the casting. That is the dimensional accuracy. And one more thing, we will get the smooth surface finish. What is the meaning of surface finish? आपको आइडिया है आप लोगों को किसी को? Yes, sir. बोलो. So smooth surface means there is no any things the surface will be very plain. Okay. So let me clear. Sir, frictionless Yes. surface. Oh, partly you are correct. Partly you are correct. No issue. Actually, whatever surface which is produced by any machining process or manufacturing process, that surface is never going to be 100% smooth. Okay. Surface is never going to be 100% smooth. What is the meaning of smoothness here? Actually, if we view the surface generated by any manufacturing process under a microscope by doing some magnification, then we'll found that the surface is somewhat rough. Okay, so that roughness may be of different order for different surfaces, but surface is never going to be 100% smooth. But still, up to certain end, we can say that surface is smooth. So, in comparison to sand casting, you can say centrifugal casting. If we consider the surface produced by precision investment casting, then these two processes will have the very smooth surfaceness in comparison to other casting processes. ठीक है, मतलब यदि हम सैंड कास्टिंग से सर कोई कास्टिंग प्रोड्यूस करते हैं और उसकी सरफेस में उसको ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं, उसी प्रकार से यदि हम प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से कोई सरफेस प्रोड्यूस करते हैं और उसको सरफेस में उसको मेजर करते हैं, तो सबसे अच्छी सरफेस फिनिश हमको कहाँ पे मिलेगी? प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में मिलेगी. डायमेंशनल एक्यूरेसी भी होगी और जो सरफेस बनेगी दैट विल हैव स्मूथ सरफेस फिनिश. So these two are the greatest advantages of precision investment casting processes. तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या होता है? We can produce complicated shapes which cannot be produced by any other casting process. Suppose we have to produce a statue of aluminium or copper or steel also. हमें एक छोटी सी स्टैचू तैयार करनी है. यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? We will have to prepare a pattern. भाई पैटर्न अलाउंस को इस्तेमाल करते हुए we will
calculate the dimensions, and we will make a pattern for that statue to be cast. अब उस पैटर्न का हमें इस्तेमाल करना है काय के लिए, for making mold. So molding is easy, but when we remove the pattern from the mold in order to create mold cavity, then it will be destroying the mold cavity because statue is having some awkward shape. ठीक है ना? So when we withdraw the pattern from the mold in order to create a mold cavity, then it destroys the mold cavity. जो हमें जिस प्रकार की mold cavity चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है. इसलिए यहाँ पे फिर एक अल्टरनेट उपाय सोचा गया. क्या सोचा गया कि instead of making a wooden mold or metallic mold or plastic mold, if we prepare a wax mold, then this problem of removal of pattern from mold will be solved. How? We will, instead of making a wooden pattern, we will make a pattern of wax. तो जो wax का pattern होगा उसको हम किसी प्रकार की शेप दे सकते हैं by the application of heat. ठीक है? सपोज हम एक आदमी जैसी मूर्ति तैयार करना चाह रहे हैं, man like statue we are going to make, then that statue will have its head, hand, legs, ठीक है ना, like that. तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उस स्टैच्यू के लिए एक बैक्स का पैटर्न तैयार करेंगे. ठीक है ना? दैट बैक्स पैटर्न कैन बी करेक्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट. बना लिया हमने. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मोल्ड मेटल मटेरियल पोर करेंगे. दैट विल बी सिमिलर टू सैंड मटेरियल. ठीक है? अब रेमिंग करने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव द पैटर्न. So since the pattern is made up of wax, then by the application of heat, the wax can be melted and the pattern can be removed easily. So this is the greatest advantage by which we can make any complicated shape which is not possible by any other casting method. तो इसके सबसे बड़े एडवांटेजेस होते हैं. कौन सा एडवांटेज है? डायमेंशनल एक्यूरेसी. बहुत अच्छी डायमेंशनल एक्यूरेसी हमको मिलेगी. whatever length, whatever dimension we were going to produce by casting, we will get the same dimension. Second one, we will be having the smooth surface mesh. And third one, we can produce any complicated shape. किसी कितनी प्रकार की भी awkward shape होगी जो हम precision investment casting से produce कर सकते हैं. One more example, very advantage, very fine details and thin section can be produced by precision investment casting. It can be lost flexible casting, it can be sand casting. So these four are some of the important advantages of precision investment casting as a whole. तब चाहे वो लॉस वैक्स मोल्ड कास्टिंग के हों या सेल मोल्ड कास्टिंग के हों, ये चार सबसे बड़े इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस होते हैं. ठीक है? यहाँ पे कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो. सर प्रोसेस एक बार बता दीजिए. सेल प्रोसेस अभी पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे अपन. अभी बता रहा हूँ. एडवांटेज की बात कर रहा था. एडवांटेज तो समझ में आ गया ना आपको? यस सर. Yes, sir. Now there are two important disadvantages also. Number one, mold making is expensive. ठीक है ना? So since we have to prepare a mold of wax, by using that we have to prepare a mold. We have to make a pattern of wax, and by using that wax pattern we have to make sand mold. So it requires some extra labor, extra manpower also. That's why it is costly. Process is costly. Apart from that, we are using investment material that makes the mold costly. Okay, so we can say that the mold making is expensive. Second, size of the casting is limited. The meaning of this is that by using these two processes, lost wax mold casting and child mold casting, we can produce casting having some small to medium size only. Very large size casting cannot be produced by precision investment casting processes. So these two are the disadvantages or demerits of the precision investment casting. Now the applications. Important application is that it can be used for making statues, then jewelries,
and surgical equipment which are having some awkward shape. Apart from these three, the precision investment casting processes can be used for making a cylinder and cylinder heads for internal combustion engine, can be used for making automobile transmission parts like gears, can be used for making brake beams, can be used for making crankshaft also. So these are some of the applications of precision investment casting processes. Okay. So now if you have any doubt regarding advantage, disadvantage and applications, you can unmute and you can ask the question. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं प्रोसेस के लिए. Okay, so no doubt. So as I told you that there are two important processes under precision investment casting. Number one is lost wax mold casting. Number two is shell mold casting. Now please try to understand the meaning of lost wax mold. Actually, it is not the mold; it is the pattern which is made up of wax. Okay, for producing very complicated shape by this casting process. Initially, we make a pattern that is made up of wax. We can give any shape to the wax pattern, and using that wax pattern, we can do the molding as done in sand molding. Okay, but instead of simple sand material, we will use the investment material here. Okay, in case of shell mold casting, the pattern will be thin sheet material having sufficient required shape and size, and that thin sheet pattern will be heated before pouring mold material into it, and then it will be rotated. So in this case also invest material is used. So whether it is lost wax mold casting or shell mold casting, investment material is needed for making sand mold. Here it is written, in case of lost wax, you can see slurry made of fine ceramic particle suspended in ethyl silicate or sodium silicate. This is the material which is used for making mold. But what happens in the vicinity of the wax pattern, we create a thickness up to 15 to 20 mm only using this material, and rest of the material is filled by simple sand mold material. इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मटेरियल यहाँ पे लिखा गया स्लरी मतलब ना तो ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है. जैसे हम पानी में रेत को डालते हैं तो रेत और पानी का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज स्लरी. So slurry made of fine ceramic particles is suspended in ethyl silicate or sodium silicate, and that is used for making mold. Dry refractory canes such as fused silica or zircon known as stucco are embedded over ceramic coating and dried. ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मटेरियल होता है. इन केस ऑफ शेल मोल्ड कास्टिंग, dry and fine silica grains completely free of clay mixed with synthetic thermosetting resins. इसमें thermosetting resins इस्तेमाल किए जाते हैं. Normally it is phenol formaldehyde which is used for making shell mold. Okay. Wait a minute, student. Okay. Okay, so I think there will be no query. Even if you have any question, you can unmute yourself and ask the question. Otherwise, we will go to second slide. कोई डाउट तो नहीं बेटे यहाँ पे? नो सर नहीं है. No, sir. So this is lost wax mold casting. अब यहाँ पे आप इस फिगर को पहले बहुत अच्छे से देखो. Instead of reading this, first of all see this figure. ठीक है, यहाँ पे ये हम एक कास्टिंग बनाने जा रहे हैं इस प्रकार की. ठीक है ना, और हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल इस टाइप के मोल्ड्स तैयार किए हैं, जिसमें हमको कितना मोल्ड्स दिख रहा है यहाँ पे 6. 1 2 3 4 5 6. ये कहलाता है ट्री, TREE ट्री. तो ट्री ऑफ वैक्स पैटर्न भी प्रोड्यूस, ये वैक्स पैटर्न है. ठीक है ना, इसके लिए हमने एक सेंट्रल पोरिंग बेसिन रखा हुआ है.
और ये सब कुछ किसका बना हुआ है? ये सब कुछ बना हुआ है वैक्स का, ठीक है ना। ऑल दिस थिंग इज मेड अप ऑफ वैक्स ओनली। हम क्या करेंगे, इनिशियली इसकी मोल्डिंग करेंगे, मोल्डिंग करने के बाद हम वैक्स को पिघला देंगे, तो जितनी जगह पे ये वैक्स पैटर्न है वो जगह वहाँ पे खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पोरिंग बेसिन, स्क्रू जैसी चीज़ मिलेगी, और इसके थ्रू हम मोल्ड को जब कास्टिंग करेंगे, कास्टिंग मटेरियल को हम सर्कुलेट कर सकते हैं कहाँ पे, मोल्ड के लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें एक सेकंड स्टेप बनता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इनिशियली दिस वैक्स पैटर्न इज डिप्ड इनटू दिस स्लरी, जो हमने पहले देखा था, नाम लिखा हुआ था, उस स्लरी में हम इसको डिप करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज स्लरी विच इज फिल्ड इन दिस फ्लास्क, सिरेमिक स्लरी इज देयर। इसको हम भरेंगे और बाहर निकाल के हल्का से इसको रोटेट करेंगे। सो बहुत सारी स्लरी इस वैक्स पैटर्न के साथ चिपकेगी, और जो चिपक नहीं पाएगी वो लूज होकर यहाँ पे गिर जाएगी। इस प्रोसेस को हम कई बार रिपीट करते हैं, ठीक है। हम इस पैटर्न को डिप करते हैं स्लरी के अंदर, बाहर निकालते हैं, हल्का सा रोटेट करते हैं, फिर इसको डिप किया जाता है, फिर निकाला जाता है, रोटेट किया जाता है। तो ऐसा करते करते इसके ऊपर क्या हो जाता है, हल्की सी लेयर तैयार हो जाती है जिसकी थिकनेस होगी अराउंड 10 to 15 और 20 mm, मतलब 1, 1.5 या 2 सेंटीमीटर की इसके ऊपर एक लेयर तैयार कर ली जाती है, ठीक है। वो जो लेयर है, वो लेयर किसकी बनी हुई है? वो इस स्लरी की बनी है। स्लरी क्या है? इन्वेस्टमेंट मटेरियल है, ठीक है। वो अपने आप में सफिशिएंट होता है, हम चाहें तो इसमें सीधे सीधे इसको लेके कास्टिंग कर सकते हैं, जैसे यू कैन सी इन दिस स्टेप, इन थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप यहाँ पे क्या देखते हो, हम इसकी कास्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे? मोल्टन मेटल को लेना पड़ेगा, मोल्टन मेटल को इसमें पोर करना पड़ेगा। तो इनिशियली जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि हम चाहें तो इसको एक मोल्ड बॉक्स के अंदर रखेंगे, ये ऑलरेडी इसके ऊपर एक सेल तैयार हो चुकी है 10 to 20 mm की, 15 mm या 20 mm की तैयार हो चुकी है। इसके बाद खाली जगह में हम क्या भरेंगे, वहां पे मोल्ड मटेरियल भरेंगे। मोल्ड मटेरियल क्योंकि वो इसके वेट को, मोल्टन मटेरियल के वेट को सपोर्ट करेगा कास्टिंग के दौरान। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मोल्डिंग करने के बाद हमको पैटर्न रिमूव करना है, तो अभी भी वैक्स वहां पे है, तो हम उस मोल्ड को हीट करेंगे आइदर इन ओवन और फर्नेस। फर्नेस में ओवन और या ओवन में इसको हीट करने से क्या होगा, वैक्स वहां से रिमूव होगा, और जितनी जगह वैक्स ने एक्वायर की थी उस जगह पे वहां पे खाली स्पेस आ जाएगी। दैट मींस वी विल बी एबल टू गेट मोल्ड कैविटी फॉर चैनलाइजिंग molten metal from pouring basin or screw to the mold only, ठीक है। Then we will do pouring of the molten material or casting material, and casting will be done as usual. So wax pattern is dipped in slurry, ceramic slurry made of binder and solid phase. The dipped slurry pattern is drained for sufficient time and then refractory powders are applied to the slurry coated pattern. हम इसको डिप करेंगे, डिप करने के बाहर निकालेंगे, रोटेट करेंगे, फिर डिप करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, कई बार करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ हल्के से रिफ्रैक्टरी पाउडर्स के ऊपर कोटिंग की जाएगी, जिससे कि हमें एक सेल मिलेगी जो कि 10 to 20 mm थिक होगी, ठीक है। ईच कोटिंग कंटेन्स फाइन सिरेमिक लेयर विथ कोर्स सिरेमिक स्टको, स्टको मीन्स मटीरियल, particles embedded in its outer surface. The fine ceramic layer is the base for the inner face of the mold and determine when the cell from cracking or pulling away by bonding. So this is the basic theory. But लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना है, initially we have to make this wax pattern, and using this wax pattern we have to create cell of sufficient thickness all around it, the surface of the wax pattern by dipping it into a ceramic slurry, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, this we have to remove the wax. So wax can be removed by putting this mold along with wax pattern in a furnace or oven. वहां पे हम वैक्स को रिमूव करेंगे, जैसे हम वैक्स रिमूव करते हैं तो हमें वहां पे क्या मिल जाएगा, वी विल गेट दिस mold cavity. This mold cavity will be sufficient for holding the molten metal, so we will be pouring and then casting will be done in usual manner by breaking this mold. This is also expandable mold, expandable, EXPENDABLE, एक्सपेंडेबल मोल्ड भी होगा, तो उसमें हम यहाँ पे फिर कास्टिंग कर पाएंगे जैसा कि एज यूजुअल यहाँ पे होता है, ओके। सो यू कैन सी द अदर फिगर आल्सो, ठीक है। वैक्स पैटर्न इंजेक्शन,
कुछ नहीं है, बैक्स पैटर्न तैयार। पहले ऐसा भाई उसमें फिगर अलग था, इसमें फिगर चेंज कर दिया कास्टिंग जो हम बनाने जा रहे हैं। प्रीवियस फिगर में हम किस टाइप की कास्टिंग तैयार करते इस प्रकार की, और इस फिगर में किस टाइप की कास्टिंग तैयार कर रहे हैं, इस प्रकार की तैयार कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, वी हैव मेड बैक्स पैटर्न बाय बैक्स पैटर्न इंजेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब होता है कि हम एक डाई लेंगे, डाई मीन्स मेटेलिक मोल्ड, उस डाई में वैक्स पैटर्न इंजेक्ट करेंगे, ठीक है ना, वैक्स इंजेक्ट करेंगे एट हाई प्रेशर। तो वो वैक्स उस मोल्ड के अंदर चली जाएगी और सॉलिडिफाई हो जाएगी। सॉलिडिफाई होने के बाद हम उस वैक्स पैटर्न को रिमूव करेंगे और ट्री के रूप में इसको अरेंज कर लेंगे, जैसे ये ट्री यहाँ पे है, ठीक है ना। ये सब कुछ यहाँ पे किसका बना होगा, सब कुछ बना होगा वैक्स का, ठीक है। इसके बाद सेल बिल्डिंग की जाएगी, जैसे हम पहले देखते थे, वी विल डिप दिस इनटू अ स्लरी, इसको बाहर निकालेंगे, फिर डिप करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, रोटेट करेंगे। तो ऐसा करते करते इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक लेयर तैयार हो जाएगी। इसकी लेयर तैयार हो जाएगी इन्वेस्टमेंट मटेरियल की, ठीक है। इसके बाद डिवैक्सिंग मतलब रिमूवल ऑफ द वैक्स। सो वी विल हीट दिस मोल्ड टू रिमूव द वैक्स फ्रॉम द mold. Then pouring is done as usual. After pouring, some time it will be given for solidification of the molten metal. Then this cell, outer cell, which is made up of investment material, will be knocked off, ठीक है ना, it will be removed by knocking it off. तो इसके साथ साथ हम क्या पाएंगे कि यहाँ पे जो मटेरियल था उसमें बहुत सारी कास्टिंग आपस में चिपकी हुई, उन कास्टिंग को हम लोग कर लेंगे and you will get the individual casting. So this is the process of lost batch mold casting. Now if you have any doubt, you can unmute yourself and ask the question. सर सर वो मतलब जो पैटर्न बनाया है उसको स्लरी में डुबोने के बाद में फिर वो हीट कर देंगे तो स्लरी तो निकल जाएगा। देखो ये क्या है, ये पैटर्न है, ये किसका बना है, जी सर। वैक्स का बना है। वैक्स में जी सर। वैक्स पैटर्न को, जिसमें कि गेट्स भी हैं, ये गेट है यहाँ पे, ये रनर है और ये स्क्रू है, ये सब किसका बना हुआ है, वैक्स का बना हुआ है। ये कंप्लीट ट्री है, किसका बना हुआ है, वैक्स का बना हुआ है। हमने इसको डिप किया स्लरी में। तो स्लरी क्या है, इट इज नाइदर लिक्विड नॉर सॉलिड। यहाँ पे दो चीजें होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी चिपकी होती है, मिक्स नहीं होती हैं। जैसा कि रेत पाउडर को अपन किस पानी में डुबोते हैं, पानी में रेत पाउडर डालते हैं, तो वो स्लरी कहलाता है। हमने इसको डिप किया तो ये स्लरी का मटेरियल रहेगा, जिसमें कुछ सैंड ग्रेन भी है और बाइंडर भी है। वो किससे चिपकेगा, पैटर्न मटेरियल से चिपकेगा, ठीक है ना। पैटर्न मटेरियल से चिपकेगा, उस पर एक हल्की सी लेयर तैयार हो जाएगी जो कुछ mm की होगी। हम इसको हल्का सा रोटेट भी किया जाता है, इसमें रोटेट इसलिए करते हैं ताकि अनवांटेड स्लरी जो लूजली अधेयर हो वहां पे निकल के अलग हो जाए। फिर से इसको डिप करते हैं इसी फ्लास्क में जिसमें कि सिरेमिक स्लरी भरी हुई है, और ऐसा तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि इसके ऊपर कम से कम 10 से 20 mm की थिकनेस की एक कोटिंग तैयार ना हो जाए। तो जो इसके ऊपर जो कोटिंग तैयार होती है वो किसकी तैयार हो गई है, वो है इन्वेस्टमेंट मटेरियल की। That coating itself is sufficient to take the weight of this molten metal. वो ब्रेक नहीं होगा बेटा। अपन जो मानते हैं कि स्लरी अलग हो जाएगी, वो नहीं हो जाएगी, होगी वहां पे, ठीक है। सर यदि ये हमें बैक Yes, sir. बोलो सर ये फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो हीट वाला था वही समझ में नहीं आया। बोलो कौन फिगर नंबर बताओ, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 4। 4। यहाँ पे हमने क्या किया, एक पैटर्न तैयार किया वैक्स का। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल पैटर्न को अरेंज कर रहे हैं, वैक्स पैटर्न को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, स्लरी में डिबोया, बार बार बाहर निकाला, रोटेट किया, फिर डुबोया, फिर निकाला, फिर रोटेट किया, तो क्या हो गया, वैक्स तैयार हो गया, वैक्स मटेरियल। अब हम यहाँ से वैक्स को हटा रहे हैं, डीवैक्स और बर्नआउट। देखो इसको उल्टा कर दिया इनने, ये गर्म भी किया, इसको गर्म करने के बाद इसको उल्टा किया तो क्या होगा, वैक्स रिमूव हो जाएगा। वैक्स रिमूव हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, वी विल गेट कैविटी एंड दैट इज मोल्ड कैविटी, ठीक है ना। उसमें हम पोरिंग करेंगे और पोरिंग करने के बाद सॉलिडिफिकेशन कराएंगे। सॉलिडिफिकेशन करने के बाद ये जो सेल बनी थी जो कि किसकी थी, इन्वेस्टमेंट मटेरियल की, उसको निकाल के रिमूव कर देंगे, टूट जाएगी, वो अलग हो जाएगी, और फिर हमें सारी कास्टिंग मिलेंगी, उसमें से निकाल के एक एक कास्टिंग अलग कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? थैंक यू सर। सर एक बार 6 नंबर वाला समझा दीजिए। जी सेल बेटे नॉक बंद करो, किसका लॉबी चालू, बंद करो अभी। सेल नॉक ऑफ का मतलब है इस सेल को हमें तोड़ना है। दिस इज लाइक सैंड मोल्ड कास्टिंग। जैसे सैंड मोल्ड में होता है ना, मोल्ड इज एक्सपेंडेबल, so this mold is also expandable. This mold should be broken
बिफोर टेकिंग आउट द कास्टिंग। तो मोल्ड को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसको नॉकिंग ऑफ का मतलब डंडा मार के, हथौड़ा मार के, चिप कैसे भी करके हम क्या करेंगे, इस मोल्ड को निकालेंगे ताकि उसके अंदर की जो कास्टिंग सॉलिडिफाई हुई हो, ठीक है, वो निकल के अलग हो जाएगी। तो वो कास्टिंग कैसी आएगी, जो कि अपन को सेकंड में फिगर नंबर 7 में दिख रहा है यहाँ पे। अब इस फिगर में क्या है, क्योंकि कुछ मटेरियल यहाँ पे रनर साइड भी छूटता है, गेट में भी छूटता है और ऊपर भी छूटता है, तो ये चिपका रहेगा आपस में। तो इसमें से हम इस कास्टिंग को कट करके, कट ऑफ है कास्टिंग के, एक एक कास्टिंग को करके अलग कर देंगे। तो एक्चुअली वी वांटेड टू मेक दिस टाइप ऑफ कास्टिंग। तो इस केस में हमने यहाँ पे एक ट्री तैयार किया है, जिसमें एक साथ हम यहाँ पे कितनी कास्टिंग तैयार कर पा रहे हैं, 8, 4 ऑन दिस साइड एंड 4 ऑन दिस साइड। तो टोटल नंबर ऑफ 8 कास्टिंग विल बी मेड इन सिंगल पोरिंग, ठीक है। और कोई डाउट? सर ये बैग्स को कैसे रिमूव करते हैं, बैग्स का जो पैटर्न? बैक्स क्या है, मोम है। जैसे आप उसको हीट करते हो पिघलती है, पिघलाने के बाद आप उसको क्या करोगे, उल्टा करोगे, तो आपको ये जो फिगर दिख रहा होगा ये सीधा है, पोरिंग के लिए यही इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पे क्या हमने उल्टा कर दिया है इसको। हमने, ये आपको येलो दिख रहा होगा, मतलब वी हैव हीटेड इट, हमने क्या किया, इसकी हीटिंग की, हीटिंग करने के बाद इसको उल्टा कर दिया, तो वैक्स यहाँ से निकल के बह जाएगा। और बहुत सारा वैक्स यदि कोई छूटता भी है इसके अंदर, तो जब हम हॉट मोल्टन मेटल इसमें भरते हैं, वो क्या करता है, इसको बर्न कर देता है। ओके सर। ठीक है, एनी डाउट? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो, और मैं जो बोल रहा हूँ अब अपनी अटेंडेंस भी इसमें डालो। अटेंडेंस आप सभी लोगों ने डाल दी है, अभी नहीं डाली कुछ लोगों ने, क्योंकि मुझे मीटिंग बंद करनी पड़ेगी, अर्जेंट मुझे जाना पड़ा है। ओके, तो आपकी एक सेकंड क्लास, नेक्स्ट क्लास भी इकट्ठी होगी, एक साथ होगी, बी के साथ में लूंगा, और 12:40 से उसमें भी आप प्रेजेंट रहिए आप लोग की। सर कितने बजे? 12:40 PM। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर।